Good afternoon, students. We are doing the chemical properties of alcohol and phenols. In with these reactions, we are doing the reactions involving cleavage of OH bond. This OH bond, this is alcohol, and this OH bond breakage take place. So in this one reactions we have done. Second is esterification reaction. Esterification reactions are those reactions in which acid or acid derivatives react with alcohol and in presence of acid and form ester. These are called esterification reactions. Here acid chloride react with the ethanol, it is a alcohol in presence of base pyridine in form ester. Here the use of pyridine is to consume the HCl form to avoid the backward reaction. जो ये HCl बनता है इस केस में इसको कंज्यूम करना है, इसका काम पायरिडाइन का काम इसको कंज्यूम करना है. ठीक है, अगर HCl कंज्यूम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा रिएक्शन क्या चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. Here another reaction is reaction with anhydride. Anhydride also react with the alcohol and form the ester. Another is the naming reaction, Scotton-Bowman reaction, in which phenol react. It is reaction of phenol. Phenol क्या करेगा, रिएक्ट करता है with benzoyl chloride के साथ in presence of pyridine and form ester. Another reaction again, phenol react with benzoyl chloride in presence of pyridine, form ester. Another reaction is salicylic acid plus anhydride. सैलिसिलिक एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो क्या होगा यहाँ पे, हाँ ये एनहाइड्राइड है. एनहाइड्राइड क्या करेगा, OH पे अटैक करेगा, मीन्स OH एल्कोहलिक ग्रुप पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, इसको एस्टर ग्रुप बना देगा इधर. ठीक है, और ये बन जाइए जो हमारा कंपाउंड होगा ये क्या होगा, एस्प्रिन. एस्प्रिन ये क्या है, एक मेडिसन है. इट इज़ अ मेडिसन. इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी. एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर. एंटीसेप्टिक मीन्स फीवर को कंट्रोल करती है. एंटीपायरेटिक्स दैट रिमूव द स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन ऑल्सो. The second property of alcohol phenol is reaction involving cleavage of CO bond in alcohol. Here this is alcohol and this one is phenol. अल्कोहल में क्या होता है, RO बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, बट इन केस ऑफ फिनोल it is difficult to cleave this bond because in first chapter we have studied that this bond has partial double bond character, so it is difficult to cleave. So this type of cleavage is shown by only alcohols, not by phenols. There is an exception only with zinc. Only with zinc phenol can show this type of reaction. So first reaction is reaction with hydrogen halide. हाइड्रोजन हैलाइड्स में आप now the reaction with hydrogen halide. In case of hydrogen halide when react with alcohol they produce alkyl halide, and this whole reaction also we have done in the first chapter. Here the formation of carbocation take place. यहाँ पे देख रहे हैं आप RO बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा. सो कार्बोकेटाइन अमंग, इफ वी टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी alcohols, then reactivity of tertiary alcohol will be faster because in case of tertiary alcohols there is a formation of tertiary carbocation and tertiary carbocation is the most stable. ठीक है, सो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर इफ वी टॉक अबाउट रिएक्टिविटी ऑर्डर देन रिएक्टिविटी विल बी टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. If we talk about the acids reactivity, if acid we have taken HI, HBr, HCl, HF, so reactivity in case of HI will be faster because in HI bond length will be higher and bond length high होगी तो क्या होगा, bond स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, मीन्स बॉन्ड होगा वीक होगा, जिसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. ये एक टेस्ट है, लुकास रिएजेंट टेस्ट. क्या है, लुकास रिएजेंट टेस्ट. इसमें क्या होता है, लुकास रिएजेंट होता क्या है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड.
ठीक है। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल्स के साथ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। आपको 3 एल्कोहल्स दे दिए गए हैं, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। तो उसके लिए हम लुकास रिएजेंट लेंगे, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट हमने लिया प्राइमरी एल्कोहल की, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको देख रहे हैं टर्बिडिटी अपीयर होगी अपॉन हीटिंग ओनली। ठीक है, हम रिएक्शन करेंगे तो कोई जस्ट जैसे हमने लुकास रिएजेंट डाला तो क्या होगा, कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी। टर्बिडिटी कब आएगी, जब हम इसको हीटअप करेंगे। हीटअप करने के बाद अगर टर्बिडिटी आती है मीन्स एल्कोहल इज प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, अगर इन केस ऑफ सेकेंडरी टर्बिडिटी अपीयर इन 4 to 5 मिनट, देर इज़ नो नीड ऑफ हीटिंग। ठीक है, बिना हीट किए 4 से 5 मिनट में क्या आ जाती है, टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। मीन्स एक गाढ़ापन, धुंधलापन, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो धुंधला हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, थर्ड क्या होगा, टर्शरी के केस में क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली। टर्बिडिटी क्या होगा, एकदम से जैसे ही हम लुकास रिएजेंट डालें एकदम से सॉल्यूशन हमारा कैसा, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगी, टर्बिडिटी आ जाएगी। मीन्स थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वो टर्शरी है। 4-5 मिनट में आती है सेकेंडरी, और अपॉन हीटिंग आती है तो क्या होगा, प्राइमरी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। ठीक है, नाउ रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन होगी, आप हमने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया है इसको, लास्ट चैप्टर में जो हमने किया है अभी। अगेन एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड भी हमने कर लिया है। सो न्यू रिएक्शन इज एक्शन ऑफ एल्कोहलिक अमोनिया। हम एल्कोहल अमोनिया की रिएक्शन, एल्कोहल एंड अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन प्रेजेंस एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपॉन हीटिंग दे विल फॉर्म अमीन। क्या बनाता है, अमीन बनाता है। बस इस केस में क्या होता है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनता, एक मिक्सचर ऑफ एमीन्स की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, एमीन्स का मिक्सचर बनता है। ठीक है, बहुत सारे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। तो इस केस में क्या होता है, बहुत सारे एमीन्स का हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। सेकेंडली डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शंस या रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर का निकलना। ठीक है, सो एल्कोहल की हम रिएक्शन कराएं, अगर हम कराएं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ भी करा सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ भी करा सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये हाँ ये डिहाइड्रेशन करते हैं, मीन्स वाटर का निकाल देते हैं। वाटर निकलेगा तो एक पोजीशन OH निकला और बीटा कार्बन से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा, जिससे क्या होगा, इन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या होगा इस केस में, क्या होगा, पहले टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्यों, बिकॉज जब इसका रिएक्शन होती है तो जो स्लो स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ इसका मैकेनिज्म दिया भी हुआ है। सो कार्बोकेटाइन स्लो स्टेप, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर्स पे क्या करेगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ सेकेंड रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द स्लो स्टेप। क्या हो जाएगा, तो स्लो स्टेप कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन पे ही क्या हमारा रेट डिपेंड करेगा। तो कार्बोकेटाइन आपको पता है टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, जो H पॉजिटिव लगा था वो H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, हमारा इन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। हेयर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, these are strong oxidizing agent, they give nascent oxygen, they give nascent oxygen। ठीक है, nascent oxygen देते हैं, ये strong oxidizing होते हैं। जो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, सीधा क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। सीधा किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम बात करें इन केस ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी के केस में क्या होता है, ये रिएक्शन लिटिल बिट स्लो होती है। क्यों होता है इस केस में, इस केस में देखिए एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो क्या होगा, इस C बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। ठीक है, सो C बॉन्ड क्लीवेज रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, ये इजीली ब्रेक नहीं होता है, ड्रास्टिक कंडीशन पे क्या होता है, ये ब्रेक होता है। तो अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा, ये रिएक्शन फास्टर होगी, क्या होगा, कंपैरेटिवली स्लो होगी, बिकॉज क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड। If we talk about the tertiary alcohol,
इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल देयर इज 2 CC बॉन्ड, ये CC बॉन्ड ब्रेक होगा, ये CC कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस केस में रिएक्शन बिकम मोर डिफिकल्ट, तो और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें नोट क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी को क्या कर सकते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बट टर्शियरी को ऑक्सीडाइज करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट होता है बिकॉज क्लीवेज ऑफ CC बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करना लिटिल बिट क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इसलिए रिएक्शन एट ड्रास्टिक कंडीशन पे ही होगी। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। अगर हम हीटेड कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कैसा ऑक्सीडेशन होगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिएक्शन हमारा एसिटिक एसिड तक नहीं जाएगी। अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, उसके बाद क्या बनता है, हमारा एसिड बनता है। सो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब जो कि लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिएक्शन कहाँ तक जाएगी, एल्डिहाइड तक जाएगी। ठीक है, अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनता है, अगर रिएक्शन अल्कोहल इज सेकेंडरी देन कीटोन विल फॉर्म, इफ रिएक्शन इज टर्शरी देन नो hydrogenation take place. In that case dehydration take place, means water का रिमूवल हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, उस केस में हमारा एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, हमारा एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। कॉपर क्या है, लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो टर्शरी को क्या कर सकता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं करा सकता। ठीक है, तो उस केस में आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इस केस में क्या हो जाएगा, टर्शरी केस में ईन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्डिहाइड और कीटोन। एल्कोहल से अगर हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन अगर हम बनाना चाहते हैं तो मीन्स कंट्रोल ऑक्सीडेशन, दिस वाज आल्सो कंट्रोल ऑक्सीडेशन। और कुछ रिएजेंट हैं ये भी क्या है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन वाले ही हैं, जैसे PCC हो गया, कोलन रिएजेंट हो गया, जॉन रिएजेंट। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, कंट्रोल ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। यार PCC लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, अगर सेकेंडरी लिया तो हमारा बन जाएगा कीटोन। ठीक है, सो ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। बाकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ और रहती है कुछ रिएक्शंस, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।